Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing well, hope all of you are hale and hearty, and yes, hope all of you have started preparing for forthcoming term 1 examination. So with this video children, I have decided to present to all of you a series of MCQ questions for practice for term 1. As we all know that term 1 will be based, it will be an objective assessment based on MCQs. So I have decided to come up with this useful practice series of MCQ questions and multiple choice questions for all of you, and I will begin this series with Unit 1 Digital Documentation Advanced, Session 1 Create and Apply Styles in the Document, and this will be part 1 of the multiple choice questions. I would just request all of you that the explanation, an in-depth elaborate explanation of this session has been provided to you in four video sessions on this channel of mine. You can definitely watch these videos before attempting the MCQ questions, because you know what happens children, MCQs require a thorough understanding, a thorough learning of subject content. So until and unless you are thorough with the content, you will not be able to attempt them. So on this note, I will begin this series of MCQ questions, and I will take you to the word file where I have actually framed them. There are 25 in this series, and I'll come up with more such questions in the coming days. I hope you will find this series useful. So let's begin the multiple choice questions. Question number 1 reads, a dash is a set of formats. A dash is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames, and other elements in your document to quickly change their appearance. So you have to just focus on this word that we are talking about, a set of formats. Okay, what is a set of formats that we can apply to different elements of our document to quickly change their appearance? 4 options have been provided. TOC, which stands for a table of contents. TOC is your table of contents. Then option B is styles. Okay, option B is styles. Then template, and then mail merge. So a table of contents, you all know that it is used to make a quick table of contents with the help of headings in your document. Okay, so this cannot be the answer. Fine. Then style, the correct answer is style. But उससे पहले देखते हैं template correct answer क्यों नहीं हो सकता. Templates होते हैं already made documents with the help of which you can make your own documents, है ना. Documents that already modeled ready-made documents that you can use to quickly create other documents, saving time. So this is for document creation. This can also not be an option. Mail merge is also not an answer, because you all know that mail merging is used so that you can quickly send the same message to different recipients, to different addresses. So the answer for this is style. The answer for this question is style. That style वो formats होते हैं जिनको आप select करके अपने document के different elements पर apply कर सकते हो to quickly change their appearance. Okay, so let's proceed to question number 2 now. Styles and formatting window is, question number 2 reads, styles and formatting window is available in which menu? आपको ये identify करना है कि styles and formatting जो आपका option है वो किस menu में available है. ठीक है, किस menu में available है. So for that you just have to, ये window आपको बतानी है कि किस जो है menu में available है, styles and formatting window. So the answer for this is format. Okay, I'll quickly take you to OpenOffice Writer and show the this thing option over here. See the format menu and see the option styles and formatting. The keyboard shortcut is F11.
ओके, सो फॉर्मेट मेन्यू, देखो आपने अभी देखा कि स्टाइल्स क्या होते हैं. स्टाइल्स इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स, अभी आपने पढ़ा स्टाइल्स हमारे सेट ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं. सो उसी से ध्यान रखना, स्टाइल मेन्यू तो कोई नहीं होता ना. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फॉर्मेट मेन्यू. फॉर्मेट मेन्यू में ही स्टाइल्स गिवन होते हैं, जो सेट ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हो. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3. स्टाइल्स आर एडवांटेजेस. अब आपको ये बताना है कि स्टाइल्स जो हैं वो हमारे एडवांटेजेस क्यों हैं. ठीक, लेट्स रीड ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट. स्टाइल्स हेल्प टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट. ओके, ये करेक्ट है, ये आंसर, ये ऑप्शन ट्रू है. ठीक है ना, क्योंकि हुआ क्या, कंसिस्टेंसी आती है बिकॉज वेन एवर योर डॉक्यूमेंट हैज identical formatting for various paragraphs, for page, for different elements of your this thing, paragraphs की alignment, फॉर्मेटिंग सेम हो, या अलाइन जो आपका मार्जिन्स हैं वो सेम हो. तो जब आपके डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी मीन्स एक यूनिकनेस आती है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है जब आप स्टाइल्स को अप्लाई करते हो. ठीक, दिस इज करेक्ट. इट हेल्प्स टू अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम. ऑब्वियस सी बात है, आप स्टाइल्स की हेल्प से जैसे स्टाइल आपने रीड आउट किया कि मैं आपको राइटर पे लेके चलती हूँ, एक मिनट, इस पॉइंट को मैं बाद में भी रेज करूँगी. सपोज आपने हेडिंग 1 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है स्टाइल, दिस इज पैराग्राफ स्टाइल एंड आई हैव सिलेक्टेड दिस हेडिंग 1 ऑप्शन. ठीक है, सो हेडिंग 1 जो स्टाइल है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज फॉन्ट इज एरियल, साइज इज 16.1, इट इज बोल्ड एंड लेफ्ट अलाइंड. सो बेसिकली ये काम अगर आप 4 स्टेप्स में करते कि टेक्स्ट सेलेक्ट करके पहले फॉन्ट अप्लाई करते, फिर साइज अप्लाई करते, फिर बोल्ड करते, फिर लेफ्ट अलाइन करते, दिस इज गिवन टू यू as just one style name which is heading 1. If you that means heading 1 is a group of these 4 formatting attributes. ठीक है ना, सो इसीलिए हम कहते हैं स्टाइल्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, दे अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम. ठीक, ग्रुप ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको क्लब करके एक स्टाइल बनाया जाता है, और एक स्टेप में आप ये जितने भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उस स्टाइल के अंदर उनको अप्लाई कर पाते हो. सो दिस इज ऑल्सो, दिस आई विल ऑल्सो से दिस इज ऑल्सो ट्रू. देन दे मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस ईजी, है ना, एंड सेव यूजर्स टाइम. ऑब्वियस सी बात है, सेकंड पॉइंट से भी आप ये समझ पा रहे हो कि यूजर का कितना टाइम सेव होता होगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम थिंग इन 4 steps or 5 steps he is able to do it in 1 step. Now what happens when you have a lengthy document, okay, and you want to give similar formatting to say all the paragraphs, or you want to give similar formatting to a set of paragraphs, what you can do, you can just apply styles, and this is going to make all these major formatting changes in your document, अलाइनमेंट हो या पैराग्राफ स्टाइलिंग हो, बहुत आसान कर देता है. या हेडिंग्स को आप सेम तरीके का फॉर्मेट देना चाहते हो, सो ऑल दी हेडिंग्स कंसिस्टेंसी आ ही रही है बिकॉज ऑल दी हेडिंग्स, ऑल दी पैराग्राफ्स, all the elements they have identical formatting. You are able to do it in a single step by just selecting the required style. So ये आपके formatting changes आसान हो जाते हैं और इससे आपका टाइम भी बचता है. So this is also true. So in that case, what will be our answer for question number 3? It is D. Answer D, all of the above. ठीक है. Now let's proceed to question number 4. आसान होते हैं बेटा एमसीक्यूज, बस चैप्टर आप थॉरली पढ़ के रखो, दे आर एक्चुअली वेरी इजी. ठीक, सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 हैज टू से. आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, स्टेट विच इज ट्रू फॉर स्टाइल्स. अब आपको बताना है स्टाइल्स के लिए क्या क्या चीजें ट्रू हैं इन 4 पॉइंट्स में से. सो पहला है ऑप्शन ए, स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स that we can apply to selected pages, text, frames and other elements in our document to quickly change their appearance. ये हमने बेसिक, ये स्टाइल की डेफिनेशन है बेटा. दिस इज हाउ यू डिफाइन अ स्टाइल. सो ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही सेम क्वेश्चन देखा था कि जब हम इसमें बता रहे थे कि इस चीज को क्या कहते हैं, वी कॉल दिस थिंग, दिस इज हाउ वी डिफाइन अ स्टाइल. सो अब देखते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ स्टाइल वी अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम. ये इसके एडवांटेज भी है ऑब्वियसली. अभी मैंने आपको करके बताया कि हेडिंग 1 में आपने एरियल लिया, 16.1 साइज लिया, बोल्ड रखा, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन रखा. सो यू वर अप्लाइंग एक्चुअली अ होल ग्रुप ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ वन स्टाइल. सो सेम टाइम पर आपके क्या हुए, 4 एट्रीब्यूट्स एक साथ अप्लाई हुए एक स्टाइल नेम सेलेक्ट करने से. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू.
Okay, then styles are logical attributes. Styles को हमने बोला logical attributes that shift the emphasis from what the text looks like to what the text is. अब होता क्या बेटा, एक होते हैं हमारे physical attributes, ठीक है ना. फिजिकल एट्रीब्यूट्स हुए जब आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉन्ट का साइज था फॉन्ट फेस था एरियल, साइज था 16.1, फॉन्ट था बोल्ड, फॉन्ट था लेफ्ट अलाइंड, है ना, लेफ्ट अलाइंड फॉन्ट था. सो ये सारे कहलाए मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, है ना. आपने एक एक करके बताया कि ये क्या एट्रीब्यूट्स हैं. अब जब इनको क्लब करके एक नाम दिया गया, क्या, हेडिंग 1, है ना, हमने इसको नाम दिया हेडिंग 1, जो एक स्टाइल है पैराग्राफ का. सो ये बन गया हमारा एक लॉजिकल एट्रीब्यूट. ठीक है, सो लॉजिकल एट्रीब्यूट ने हमें कहा कि ओके हेडिंग 1 लगा हुआ है, दिस इज द मीनिंग ऑफ माय टेक्स्ट, हेडिंग 1. It is incorporating so many things inside it, but these are the physical attributes. I have given it a logical name, logical identity, that is heading 1. So this point is also true. So my answer in this case would also be all of the above. Question number 1 answer would be all of the above. ठीक, let's quickly proceed to question number 5. Open office writer, if I say open office writer provides डैश टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स, कितनी स्टाइल्स या कैटेगरीज प्रोवाइड करता है. सो लेट्स क्विकली प्रोसीड टू ओपन ऑफिस राइटर एंड सी. देखो पहला स्टाइल है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज, लिस्ट. कितने हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5. सो हमारे पास कितने स्टाइल्स हैं ओपन ऑफिस राइटर में, आंसर इज 5. ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज 5. ओपन ऑफिस राइटर हमें 5 कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स प्रोवाइड करता है. लेट्स प्रोसीड चिल्ड्रन टू क्वेश्चन नंबर 6. द डैश फंक्शन की, और ऐसे भी पूछ सकते हैं द कीबोर्ड शॉर्टकट, या फिर सीधे पूछ सकते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट दैट कैन बी यूज्ड टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो. कीबोर्ड से अगर हमें ओपन करना है तो हम कौन सी फंक्शन की यूज करें या कौन सी शॉर्टकट की यूज करें. द आंसर इज F11. अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब आप फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक करते हो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आता है, यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज F11. So ये आप याद रखना that the answer is F11. By pressing key F11 you can open the styles and formatting window from the keyboard. Let's come to question number 7. The other name for object bar. ऑब्जेक्ट बार बहुत कम सुना हुआ नाम है, ठीक है ना, बट ऑब्जेक्ट बार बोलते हैं बेटा हम फॉर्मेटिंग टूल बार को. याद रखना हमारे पास मेन्यू बार होती है ऊपर, वी हैव द स्टैंडर्ड टूल बार, वी हैव द स्टेटस बार एट द बॉटम, ठीक है, एंड देन वी हैव द फॉर्मेटिंग टूल बार दैट कंटेन्स वेरियस ऑप्शंस फॉर formatting a document, quickly accessible icons that let us, tools or icons that let us format a document without using the menu bar. तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बार. ऑब्जेक्ट बार हमारा अदर नेम है फॉर्मेटिंग टूल बार का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना. ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द अदर नेम फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार, तो आप क्या आंसर दोगे, द अदर नेम फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार इज योर, the other name for formatting toolbar is your object bar. ठीक है, now let's proceed to question number 8. I'll just quickly take you to question number 8. Question number 8 कहता है बेटा the styles and formatting window 3 तरीके can be opened by methods given है. ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है कि कितने means या कितने methods या कितने वेज से ये खोली जा सकती है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो. सो द फर्स्ट थिंग इज प्रेसिंग F11 की फ्रॉम द कीबोर्ड. ये अब भी हमने पढ़ा, शॉर्टकट है, सो दिस इज ट्रू, ठीक है. देन थोड़ी फिर क्लिक द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बार. ऑब्जेक्ट बार का मैंने अभी आपको अदर नेम बताया, दैट इज फॉर्मेटिंग टूल बार. लेट्स क्विकली सी ओपन ऑफिस राइटर की फॉर्मेटिंग टूल बार में लेफ्ट मोस्ट आइकन जो है वो दैट इज योर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग. देखो ब्रैकेट में F11 भी लिखा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन कहाँ लोकेटेड होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार या ऑब्जेक्ट बार के लेफ्ट साइड पर, ठीक. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यूजिंग फॉर्मेट स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन फ्रॉम दी मेन्यू बार. ये मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ कि फॉर्मेट मेन्यू में अगर आप जाएंगे तो आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द करेक्ट आंसर is D, that is all of the above. There are 3 ways in which we can open the styles and formatting window. Let's proceed to question number 9.
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। ठीक है, इसको इन्होंने 4 स्टाइल नेम्स दिए हैं आपको, पेज स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल। चारों ही ओपन ऑफिस राइटर को बिलोंग करते हैं। ऑल आर ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल्स। ठीक है, राइटर स्टाइल्स हैं आपके। अब आपको ये बताना है कि इन स्टाइल्स में से कौन सा स्टाइल आप यूज करोगे अगर आपको मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर्स या बैकग्राउंड्स पर वर्क करना है। सो ऑब्वियसली बात है, हेडर फुटर किसके होते हैं बेटा, पेज पे लगते हैं। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका करेक्ट आंसर। हेडर फुटर मार्जिन्स या पेज पर लगाते हो तो ये आपने इसका आंसर लिख दिया पेज स्टाइल। ठीक, कैरेक्टर स्टाइल्स होते हैं जो पैराग्राफ में मतलब इंडिविजुअल लेटर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ पर अप्लाई होते हैं। फ्रेम स्टाइल्स होते हैं जो ग्राफिक्स पर या टेक्स्ट फ्रेम्स पर अप्लाई होते हैं। पैराग्राफ स्टाइल एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। सो ऑब्वियसली आपका आंसर इसका क्या हुआ, दैट इज पेज स्टाइल्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10 and it reads, which out of the following styles affect selected text within a paragraph? And you can use it to see what format options like size of the text, font, bold, italic formats apply करने देता है। अभी मैंने आपको बताया टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। ठीक है ना, एक पैराग्राफ लिखा है आपने, ठीक है, पैराग्राफ आपने लिखा और उसमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, वर्ड हो सकता है, कोई सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, आपको फॉर्मेट करना है। कौन सा सच स्टाइल आप यूज करोगे राइटर का, दैट इज योर कैरेक्टर स्टाइल। ठीक है, सो पैराग्राफ स्टाइल फुल पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ नहीं, वो तो उस पैराग्राफ पे कंप्लीट स्टाइल पे, पेज आपका फुल पेज पर अप्लाई होता है, फ्रेम आपका इमेजेस और टेक्स्ट फ्रेम्स पर अप्लाई होता है। कैरेक्टर स्टाइल इसका आंसर है, दैट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। ये आपको याद करने पड़ेंगे बट दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, लॉजिकली सोचोगे तो सारे आंसर्स आप कर पाओगे। ठीक, तो डैश अप्लाइज सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स टू फॉन्ट्स एंड फॉन्ट्स टू नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। ठीक है ना, सो जैसे मैंने लिखा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, सपोज मैंने ये लिखा, एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, सो मैं इसको बुलेट्स दे सकती हूँ। ठीक है, फिर इसी लिस्ट को मैं नंबरिंग दे सकती हूँ, या सपोज मैंने एक नई लिस्ट बनाई, ओपन ऑफिस राइटर के कंपोनेंट्स, ओपन ऑफिस के कंपोनेंट्स लिखते हैं, राइटर हो गया, कैल्क हो गया, बेस हो गया, इम्प्रेस हो गया, और अब मैं यहाँ पर नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4। ठीक, सो अब जब आप ये लिस्ट्स, बुलेटेड लिस्ट पे फॉर्मेटिंग करते हो, मतलब स्टाइल्स अप्लाई करते हो, तो वो कौन से स्टाइल्स होते हैं? देखो, सेल स्टाइल्स तो हमारा राइटर का स्टाइल ही नहीं है, ये है हमारा कैल्क का स्टाइल। प्रेजेंटेशन ये हमारा है इम्प्रेस का स्टाइल। ठीक है, ग्राफिक्स भी है हमारा जो पावरपॉइंट पैकेज है ओपन ऑफिस राइटर का, इम्प्रेस का स्टाइल। अब कौन सा ऑप्शन आया, लिस्ट, लिस्ट स्टाइल्स। देखो, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में द नेम इज लिस्ट, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इसकी नेम है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में नंबरिंग स्टाइल्स दिया हुआ है। सो ये दोनों ही मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगर लिस्ट ना लिख के नंबरिंग लिखा है, डोंट पैनिक, नंबरिंग को टिक करना, इट इज गिवन इन योर स्टडी मटेरियल्स, अदरवाइज इट इज लिस्ट। आई विल शो इट टू यू, सी ओवर हियर, दिस इज योर लिस्ट स्टाइल्स। ठीक है ना, सो लिस्ट स्टाइल्स अगर आप लेते हो, सो यू विल बी एबल टू अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग या बुलेट कैरेक्टर्स टू नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। सो द आंसर इज लिस्ट और नंबरिंग स्टाइल्स। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अभी तो हमें 25 क्वेश्चंस करने हैं। आई होप ये 11 क्वेश्चंस आपको साथ साथ प्रिपेयर हो रहे होंगे। Which out of the following styles is provided by OpenOffice Writer? Identify कीजिए, in your study material 8 styles are given, 5 of Writer and then 2 Impress के हैं और एक आपका Calc का है। ठीक है, तो ग्राफिक स्टाइल आपका Impress है। ग्राफिक्स से याद रखना, ग्राफिक आ गया, प्रेजेंटेशन आ गया, ये आपका पावरपॉइंट का स्टाइल है, राइटर का स्टाइल नहीं है। फ्रेम आपका राइटर में आता है, ठीक है, सेल आपका कैल्क में आता है।
क्वेश्चन कह रहा है ओपन ऑफिस राइटर का कौन सा स्टाइल है इन चारों में से, तो द आंसर इज फ्रेम स्टाइल्स। ठीक है, लर्न करना मेरे साथ नाम पार्ट 2 में मैं एमसीक्यूज में फिर लेके आऊंगी इसको रिगरस प्रैक्टिस के लिए। पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज एंड लिस्ट, ये 5 स्टाइल्स होते हैं आपके राइटर में। ठीक है, देन अनन्या वांट्स, क्वेश्चन 13 थोड़ा सा पूछा है इस तरीके से केस स्टडी फॉर्म में फ्रेम करके। अनन्या वांट्स टू क्विकली फॉर्मेट the graphic text frames including wrapping type, borders, backgrounds and columns in her document। फॉर्मेट उसे करना है ग्राफिक्स को यानी इमेज को और टेक्स्ट फ्रेम्स को। ठीक है, इन हर डॉक्यूमेंट विच स्टाइल शी शुड यूज। कंफ्यूज करने के लिए आपको ग्राफिक स्टाइल दे देंगे, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स दे देंगे, लेकिन ये दोनों ही किसके हैं, इम्प्रेस के। ठीक है ना, टेक्स्ट से कंफ्यूज करने के लिए ये आपको कैरेक्टर दे सकते हैं, ये राइटर का है, नो, ठीक है ना, ये है फ्रेम, ये भी राइटर का है। ये पूछते हैं ग्राफिक्स, जहां वर्ड आ गया ना इमेज एंड टेक्स्ट इकट्ठे, टेक्स्ट नहीं लिखा, टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ नहीं लिखा, लिखा टेक्स्ट फ्रेम। ठीक है ना, सो ग्राफिक या टेक्स्ट फ्रेम पर अगर आपको स्टाइल अप्लाई करना है तो होता है आपका फ्रेम स्टाइल। फाइन, कैरेक्टर स्टाइल तो कैरेक्टर विद इन कैरेक्टर्स और टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ होता है, और ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन राइटर के हैं ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका आंसर होगा फ्रेम स्टाइल। ठीक है ना, तो बहुत क्लोज ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत ध्यान से करना। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल। पहले पूछा था हमने कौन सा ओपन ऑफिस राइटर का स्टाइल है, नाउ वी आर आस्किंग कौन सा ओपन ऑफिस राइटर का स्टाइल नहीं है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखते हैं पेज स्टाइल। 5 स्टाइल्स याद करो, पेज, कैरेक्टर, पैराग्राफ। ठीक है ना, कैरेक्टर मिल गया हमें राइटर में। देन लिस्ट एंड फ्रेम, लिस्ट भी राइटर का है और फ्रेम भी, फ्रेम इसमें गिवन नहीं है। बचा कौन सा, सेल। सेल क्योंकि कैलकुलेशन, स्प्रेडशीट्स में क्या होते हैं, सेल्स पे आप वर्क करते हो, कैल्क का स्टाइल है, कैल्क का स्टाइल। ठीक है ना, सो कौन सा इसमें से ओपन ऑफिस राइटर में नहीं आता, आंसर इज सेल स्टाइल। ओके, ठीक है, सो यू कैन जस्ट यूज दीज ऑप्शंस टू carefully learn or analyze the options before you mark any answer. Now to move the styles and formatting window to a convenient position on the screen or to dock it to an edge, hold down the dash key and drag it by the title bar to where you want it docked. डॉक का मतलब मैंने अपने वीडियो में फर्स्ट पार्ट में भी बताया है कि आप उसको एक जगह पर फिक्स कर देते हो, हटा सकते हो उसको, बट फ्लोटिंग विंडो होता है उसको एक साइड डॉक कर देते हो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को। सो इसके लिए जो की यूज होती है दैट इज कंट्रोल की। कंट्रोल की के साथ आप टाइटल बार प्रेस करते हो, then you are able to dock it or fix it to the rightmost location of your OpenOffice Writer window. So docking के लिए की आप याद रखना, that is your control key. Fine, that is your control key. So let me now take you to the question number 15, to question number 15 and let me just take you there children. Question number 15 में क्या कहते हैं, अच्छा question number 15 हमारा हो गया है। Now we'll proceed to question number 16. ठीक, सो आई होप आपको ये साथ साथ प्रिपेयर हो रहे होंगे क्वेश्चंस एंड आपको ये यूजफुल लगेंगे और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को बेटा लाती रहूंगी। सार्थक इज लर्निंग टू अप्लाई पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स टू हिज ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, कौन से स्टाइल्स को अप्लाई करना सीख रहा है सार्थक, पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स। ठीक, क्या यूज कर रहे हैं, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। देखो ध्यान करो, अप्लाई करते हैं स्टाइल्स हम दो मेथड से, एक होता है फिल फॉर्मेट मोड और एक होता है यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ठीक, सो मेथड इन्होंने दिया स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को यूज कर रहा है। ही इज यूजिंग पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स, ही वांट्स टू यूज। फाइन, ही हैज बीन गिवन 2 points फॉर अप्लाइंग, पॉइंट नंबर 1 and 2 फॉर अप्लाइंग पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स रिस्पेक्टिवली। यानी पॉइंट नंबर 1 जो होगा वो होगा पैराग्राफ के लिए और पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो कैरेक्टर स्टाइल्स के लिए। यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो हेल्प सार्थक टू सिलेक्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए टू डी। पहले पॉइंट नंबर 1 और 2 को ध्यान से पढ़ो, फिर आप सार्थक को बताना कि ए टू डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। टू अप्लाई अ पैराग्राफ स्टाइल, ठीक, पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट in the paragraph and then double click on the name of the style in the paragraph style list। ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान आपको देना है कि यहाँ डबल क्लिक होना चाहिए।
दूसरा आपको ध्यान देना है कि पैराग्राफ कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, आपको कहीं पर भी एक इंसर्शन पॉइंट को अपने प्लेस करना उस पैराग्राफ के, और पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट में जो भी डिजायर्ड स्टाइल आप चाहते हो उस पैराग्राफ पे अप्लाई हो, उस पर डबल क्लिक करना है। अगर यहाँ क्लिक लिखा होता वो गलत होता बेटा, डबल क्लिक। तो दिस इज ट्रू। अब कहते हैं टू अप्लाई अ कैरेक्टर स्टाइल, सिलेक्ट द कैरेक्टर्स फर्स्ट। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कैरेक्टर स्टाइल्स लेने हैं तो पहले पैराग्राफ के बीच में इंसर्शन पॉइंट नहीं लाना, जिन कैरेक्टर्स को फॉर्मेट करना है उनको सिलेक्ट कर लो, and then go to the character style list and double click on the name of the style. Absolutely correct. ध्यान क्या देनी है, दो चीजों पे डबल क्लिकिंग होनी चाहिए। पहली चीज, जब आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को यूज करते हो तो डबल क्लिक करना पड़ता है स्टाइल नेम पर डिजायर्ड कैटेगरी में। दूसरी चीज, अगर आप पैराग्राफ स्टाइल या पेज या फ्रेम कोई भी स्टाइल अप्लाई करो, यू हैव टू प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर विद इन दैट एलिमेंट एंड देन डू द फॉर्मेटिंग, देन डू द स्टाइलिंग। कैरेक्टर को अगर आपको करना है तो कैरेक्टर इज टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, फाइन, तो आपको उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट रखने से नहीं होगा, सेलेक्ट करके फिर आपको ये करना होगा। सो ओनली वन इज करेक्ट, ये नहीं है, ओनली टू इज करेक्ट, ये नहीं है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट नहीं। हमने कहा कि दोनों ही तरीके जो सार्थक अप्लाई करने के सीख रहा है पॉइंट नंबर 1 and 2 में की हेल्प से दोनों ही ठीक है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द गिवन पॉइंट्स 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम A to D। ठीक, 1 and 2 देखते हैं। स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, बिल्कुल ठीक है, स्टाइल्स वहीं से लगते हैं। स्टाइल्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड। दीज आर दी टू वेज ऑफ अप्लाइंग स्टाइल्स। स्टाइल्स अप्लाई करने के दो तरीके हैं बेटा, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से करो या फिल फॉर्मेट मोड से करो। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द आंसर वुड बी ओनली 1 इज करेक्ट नहीं है, ओनली 2 इज करेक्ट नहीं है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट भी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है बच्चे, तो बहुत ध्यान से करना। कुछ गिवन पॉइंट्स को एनालाइज करके आपको बताना होता है कि वो पॉइंट्स किस कॉम्बिनेशन में ठीक है, ठीक है ना। उन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन कौन सा है जो ठीक है, सारे ठीक हैं, सारे गलत हैं, या कुछ पर्टिकुलर ठीक हैं। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी asked, so please be very attentive. Dash is used, question number 18, dash is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles formatting window and double click every time. जब आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से स्टाइल अप्लाई करते हो तो आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। अब आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाके डबल क्लिक नहीं करना चाहते, तो कौन से मेथड से आप स्टाइल्स अप्लाई करोगे? द आंसर इज फिल फॉर्मेट मोड। ये पूरा पार्ट 2 मेरा जो वीडियो का है वो इसी पर बेस्ड है। फिल फॉर्मेट मोड आइकन मैं आपको दिखा देती हूँ राइटर डॉक्यूमेंट में, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ही यहाँ पर है फिल फॉर्मेट मोड। इस पर जब आप यूज करते हो, इस ऑप्शन को जब आप यूज करते हो, तो आप क्विकली अपने डॉक्यूमेंट के एरियाज को स्टाइल कर सकते हो। बार बार आपको स्टाइल नेम पर डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एक बार स्टाइल नेम लो, फिल फॉर्मेट बकेट में उसको फिल करो और जहां जहां रिक्वायर्ड हो वहां क्लिक करते चले जाओ। क्विकली आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के एरियाज को मॉडिफाई कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो। सो द ऑप्शन इज फिल फॉर्मेट मोड। Okay, now next is Sonia wants to format many scattered paragraphs, cells or other items in her document. Format many scattered paragraphs. Scattered information है उसकी। पैराग्राफ हो सकती है, सेल हो सकती है, अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं विद द सेम स्टाइल। देखो स्कैटर्ड भी है, यानी कि सपोज एक पैराग्राफ है, फिर दूसरा पैराग्राफ है, फिर तीसरा पैराग्राफ। इससे सोनिया वांट्स कि ये दो का सिमिलर, ये स्कैटर्ड है, इनकी फॉर्मेटिंग सेम स्टाइल से हो। ठीक, सजेस्ट द मेथड शी शुड यूज, कौन सा मेथड इसे यूज करना चाहिए, ठीक है ना। सो द ऑप्शन इज फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड ड्रैग एंड ड्रॉप अप्लाई करने का तरीका नहीं है, लोड स्टाइल अप्लाई करने का तरीका नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज फिल फॉर्मेट मोड। ध्यान रखना, सेम फॉर्मेटिंग, सेम स्टाइलिंग, इफ इट इज टू बी अप्लाइड एट डिफरेंट पेजेस, एट डिफरेंट टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, they may be scattered, they may be continuation, no issues, they may be scattered। तो आपको बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पर जाकर सिलेक्ट कर डबल क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे फिल फॉर्मेट मोड से उसको क्विकली
क्या कर सकते हो, स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एलिमेंट्स स्कैटर्ड हो चाहे वो एलिमेंट्स टुगेदर हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, द फिल फॉर्मेट मोड आइकन इज लोकेटेड इन, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, स्टैंडर्ड टूल बार, पिक्चर टूल बार, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। अब देखो आइकन है ना, ये है हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में। गिन लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आगे। 1 2 3 4 5 6 7 आइकन्स हैं। 6th नंबर का आइकन जो है दैट इज फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड हमारा आइकन प्रेजेंट होता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में। ये हमारा किसी टूल बार में नहीं होता, ये स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के टॉप पर हमें 6th पोजीशन पर मिलता है। सो द आंसर इज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ठीक, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। टू अप्लाई अ पैराग्राफ पेज और फ्रेम स्टाइल यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, फिल फॉर्मेट। होवर द माउस ओवर द पैराग्राफ, पेज और फ्रेम। भाई पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ पे होवर करो, पेज के लिए पेज पर होवर करो, फ्रेम के लिए फ्रेम पर होवर करो। ठीक, एंड डबल क्लिक नहीं, ये गलती आई। जब आप फिल फॉर्मेट यूज को करते हो होवर करके आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक नहीं करते। डबल क्लिक करते हो जब आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से ऑप्शन लेते हो, वहां डबल क्लिक करते हो। फिल फॉर्मेट मोड के साथ जस्ट फिल द फॉर्मेट, सिलेक्ट द स्टाइल, क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड बटन आइकन एंड वेर दो बकेट बन जाएगी। जहां जहां अप्लाई करना है उस जगह होवर करो और क्लिक करो, डबल क्लिक नहीं करना। सो द आंसर टू दिस इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू नहीं है। ट्रू तब होता जब यहां लिखा होता क्लिक एंड क्लिक, तो ये आंसर ट्रू होता। अब देखते हैं, व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव अ डैश क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट अंडर्स द लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। ठीक है ना, फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है यानी मेरी बकेट बनी हुई है। कौन सा क्लिक हम ऐसे करेंगे, और आपने सपोज 1 2 3 4 पोजीशंस पर उसको लगाया है फिल फॉर्मेट को। अब अगर आप डॉक्यूमेंट पे कर देते हो राइट क्लिक, ठीक है, तो आपका ये वाला जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन था ये अंडू हो जाएगा। यानी जो ये फॉर्मेटिंग हुई थी लास्ट आपने कौन सी करी थी, 4th लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन को अगर आपको डिसेबल करना है, या अगर आपसे डॉक्यूमेंट पर कहीं पर भी राइट क्लिक हो जाता है तो लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन आपका अंडू हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं उसका इम्पैक्ट। सो आप यहाँ ऑप्शन क्या दोगे, लेफ्ट क्लिक नहीं, डबल क्लिक नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, द करेक्ट आंसर इज राइट क्लिक। ओके, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 23 और अब हम 25th क्वेश्चन पर आने ही वाले हैं। सो लेट्स क्विकली फिनिश दिस MCQ सीरीज पार्ट 1। अब टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड, दो तरीके होते हैं क्विट फिल फॉर्मेट मोड को क्विट करने के। एक तो होता है फिल फॉर्मेट मोड जब एक्टिव हो उसी बटन पर, वो टॉगल की तरह है, एक बार क्लिक करोगे एक्टिव हो जाएगा फिल फॉर्मेट मोड, दोबारा क्लिक करोगे डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक, दूसरा कीबोर्ड से कैसे करते हैं, वी प्रेस दी एस्केप की। अगर फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है तो आप कौन सी की प्रेस करके क्विट कर सकते हो, द आंसर इज एस्केप। ठीक है, फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है और आप राइट क्लिक करते हो तो आपका लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन अंडू हो जाता है। अब देखते हैं, व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव अ क्लिक ऑन द फिल फॉर्मेट मोड। ध्यान से देखो, क्लिक पूछा है, राइट क्लिक नहीं पूछा। दोबारा अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो मैंने आपको अभी बताया था कि फिल फॉर्मेट बटन एक टॉगल की तरह है, एक्टिव था, क्लिक करने पर क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इनएक्टिव था क्लिक करने पर वो एक्टिव हो जाएगा। सो फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव था, आपने फिर से उसके आइकन पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इसका मतलब इट विल क्विट द फिल फॉर्मेट मोड। यहां से मैं हटा देती हूँ, गलती हो गई है, प्लीज बेयर विद इट। इट विल क्विट द फिल फॉर्मेट मोड। ठीक है ना, रिपीट नहीं करेगा, रीडू नहीं करेगा, अंडू नहीं करेगा, क्विट कर जाएगा फिल फॉर्मेट मोड को। दो तरीके से क्विट होता है, या तो फिल फॉर्मेट मोड पर आइकन पर ही क्लिक कर दो या कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दो। और बचा पार्टी, अब हम आ गए हैं 25th यानी कि लास्ट MCQ पर। हाउ मेनी आइकन्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। समझाते समझाते अभी मैंने आपको बताया था आंसर इज 7। फिर से देख लो, कभी मैम बोलो मैम कैसे हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 7 आइकन्स प्रेजेंट है एट द टॉप ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग मोड विंडो। सो द करेक्ट आंसर इज 7। 5 स्टाइल्स होते हैं, एक फिल फॉर्मेट होता है, एक मल्टीपर्पज हमारा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन होता है, लेकिन ड्रॉप डाउन होता है जिसमें हमें फिर से 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 7।
हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ हैप्पी लर्निंग। आज चलो एक छोटा सा स्माइली भी बना देते हैं। हैप्पी लर्निंग बेटा, बहुत अच्छे से तैयारी करो अपने टर्म 1 एग्जाम्स की। और अगर आपको ये MCQ सीरीज यूजफुल लग रही है, आप चाहते हो मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। मोटिवेट करो मैम को भी, जैसे टीचर्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को भी अपने टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए। सो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस थॉरली, इनको रिकॉर्ड करके चलो। आपको ये सीरीज बहुत हेल्पफुल लगेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसको अच्छे से स्टडी करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ योर create and apply styles in the document MCQ part 1। ठीक है, सो पार्ट 2 के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, बट पार्ट 1 का फीडबैक जरूर देना। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग।